Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. You will be safe and sound at your homes. Today we are going to read unit number 7, water, and today's topic is 6 foolish fishermen. You can find this chapter on the page number 178. Here it is. Now, first of all, we start from the fiction. What is fiction? Fiction in literature, it is the form of prose, like novels, that describes imaginary events and people. This is not related to reality. It's totally based on imagination, right? Fiction, you can see many fictions like science fiction, romance fiction, thrill fictions. There are different types of fictions, right? Next is English folk tale. What is English folk tale? जिसको हम कहेंगे लोक कहानी. फिक्शन को उर्दू में हम बोलेंगे अफसानवी अदब, और इंग्लिश फोक टेल लोक कहानी है, अंग्रेजी लोक कहानी. लोक कहानी किसको कहते हैं? So English folk tale is an old story that has been told again and again. ऐसी कहानी जो बार बार सुनाई जाए, that goes on from generation to generation. As you can see here at the end of this story, it is written here, retold by Stephen Corin, right? ये ऐसी कहानी है जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती जाती हैं. It's totally based on imagination. It's beyond reality. ये तस्वुराती कहानियाँ होती हैं जो कि अपने इमेजिनेशन से क्रिएट करते हैं, और इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता. So let's start reading 6 foolish fishermen. 6 बेवकूफ़ मछेरे. Elf, Bill, Clem, Dick, Ed and Fred were 6 brothers who were all very keen fishermen. Elf, Bill, Clem, Dick, Ed and Fred कौन थे? 6 भाई थे जो मछलियाँ पकड़ने के बड़े शौकीन थे. One fine morning they decided to go down to the river to see who could catch the most fish. एक सुहानी सुबह उन्होंने दरिया की तरफ जाने का फैसला किया. They decided to go down to the river. उन्होंने दरिया की तरफ जाने का फैसला किया. To see, देखने के लिए who could catch the most fish, कि कौन सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकता था. Elf said he would fish from his boat. Elf ने कहा कि वो अपनी कश्ती से मछलियाँ पकड़ेगा. Bill from a raft. बिल लकड़ी के तख्ते से. क्लैम फ्रॉम अ ब्रिज ओवर द रिवर. क्लैम दरिया के ऊपर पुल से. डिक फ्रॉम अ ट्री ओवर हैंगिंग द रिवर. डिक दरख्त से जो दरिया पर झुका हुआ था वहाँ से. एंड एड फ्रॉम अ लिटिल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द रिवर. और एड दरिया के दरमियान में छोटे जजीरे से. फ्रेड सेड, फ्रेड ने कहा, I shall walk along the bank of the river and fish. मैं दरिया के किनारे के साथ साथ सैर करूँगा और मछलियाँ पकड़ूँगा. They fished all through that sunny morning. उन्होंने सारी रोशन सुबह, यानी कि all sunny morning, सुहानी सुबह, यानी कि रोशन चमकदार सुबह, उन्होंने मछलियाँ पकड़ते हुए गुजारी. They all caught lots of fish and they were all very pleased with themselves. उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और वो सब बहुत खुश थे. They all caught lots of fish. उन्होंने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी and they were all very pleased with themselves, और वो सब बहुत खुश थे. Come to the next page. But Elf was worried about one thing. लेकिन Elf एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान था. One rather important thing, जबकि एक बहुत ही अहम बात के बारे में वो परेशान था. As all the brothers had been fishing in different places, जैसा कि तमाम भाई मुख्तलिफ जगहों से मछलियाँ पकड़ रहे थे. He wondered
whether they were all safe and sound. वो हैरान था या उसने गौर किया कि क्या वो सब महफूज भी हैं या महफूज भी थे. Perhaps Clem has fallen off the bridge and got drowned, he thought. उसने सोचा शायद क्लेफ जो है Clem, perhaps Clem has fallen off the bridge and got drowned, he thought. उसने सोचा शायद जो Clem है वो पुल से गिर गया हो और डूब गया हो. Or maybe Dick has slipped off that tree trunk. और हो सकता है जो डिक है वो दरख्त के तने से गिर गया हो. I had better count all of us brothers to see if we are all here. जी, बेहतर होगा कि मैं सब भाइयों को गिन लूँ ये देखने के लिए कि क्या हम सब यहाँ हैं. I had better count, इससे बेहतर है कि मैं सब भाइयों को काउंट कर लूँ. If we are all here, कि हम सब यहीं मौजूद हैं. And he started to count, और उसने गिनना शुरू कर दिया. There's Bill on the raft. ये रहा बिल राफ्ट पे यानी कि तख्ते पे. That makes one, ये एक हो गया. There is a Clem on the bridge. पुल पर क्लैम है, वो रहा क्लैम पुल पर. That makes two, दो हो गए. I can see Dick on the tree. मैं डिक को दरख्त पर देख सकता हूँ. That's three, तीन हो गए. There is Ed on the island. वो रहा एड जजीरे पर. That's four, चार हैं, ये चार हो गए. And Fred on the bank, और दरिया के किनारे फ्रेड है. That's five, और ये पाँच हैं यानी कि पाँच हो गए. But we are six, लेकिन हम तो छः हैं. Good gracious me, ओ मेरे खुदाया. One brother has been lost, मेरा एक भाई खो गया है. One brother has been lost, एक भाई खो गया है. He was so upset he forgot to count himself. वो इतना परेशान हुआ था कि वो अपने आप को गिनना भूल गया था. Bill on the raft heard him, जो राफ्ट पे बिल था उसने उसको सुना. उसके बाद सुनी Have we really lost one? क्या हम एक भाई को खो चुके हैं? He asked and he too began to count. उसने भी पूछा और उसने भी गिनती करना शुरू कर दी. There is a Clem on the bridge. वो रहा क्लैम पुल पर. That makes one, एक हो गया. Dick is on the tree. डिक दरख्त पर है. That's two, दो हो गए. I spy Ed on the island. मैं देख सकता हूँ कि एड जो है वो जजीरे पर है. That's three, ये तीन हैं, तीन हो गए. And there's a Fred on the bank. और फ्रेड जो है दरिया के किनारे है. That's four, ये चार हो गए. Oh yes, of course, that's Elf looking worried in the boat. और हाँ यकीनन दैट्स एल्फ, ये एल्फ है जो बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है. कहाँ पे? इन द बोट, कश्ती में. दैट्स फाइव, ये पाँच हो गए. फाइव, वेयर इज द सिक्स? पाँच, छठा कहाँ है? ओ डियर, वी हैव लॉस्ट वन. ओ मेरे प्यारे भाई, हमने एक भाई को खो दिया है. क्लैम स्पॉटेड हिम फ्रॉम द ब्रिज. क्लैम स्पॉटेड हिम फ्रॉम द ब्रिज. क्लैम ने उसे पुल से देखा. आई एम गोइंग टू हैव अ रीकाउंट. मैं दोबारा गिनने जा रहा हूँ. ही सेड, उसने कहा. देयर इज डिक ऑन द ब्रांच. वो शाख पर रहा डिक. दैट्स वन, ये एक है. एड इज क्वाइट विजिबल ऑन इन हिज बोट. जो एड है वो वाजिया नज़र आ रहा है जजीरे पर. सॉरी, एड इज़ क्वाइट विजिबल ऑन द आइलैंड. एड जो है वो वाजिया तौर पर दिखाई दे रहा है. कहाँ पर? आइलैंड पर, जजीरे पर. दैट्स टू, ये दो हो गए. फ्रेड इज़ ऑन द बैंक. फ्रेड जो है दरिया के किनारे पर है. दैट्स थ्री, ये तीन है. एल्फ इज स्टिल देयर इन हिज बोट. एल्फ अभी तक अपनी कश्ती में है. दैट्स फोर, ये चार हो गए. एंड बिल इज़ फ्लोटिंग टूवर्ड्स मी ऑन हिज रैफ्ट. और बिल जो है वो तैरता हुआ तख्ते पर मेरी तरफ ही आ रहा है. मेकिंग फाइव, जिससे पाँच हो गए. ओ गुडनेस मी, ओ मेरे खुदाया. ओनली फाइव, सिर्फ पाँच. वी हैव इंडीड लॉस्ट वन. हम यकीनन एक भाई को खो चुके हैं. ही वॉज सो अपसेट दैट डिक काउंटेड दैम अगेन जस्ट टू मेक श्योर. वो इतना परेशान था कि डिक काउंटेड दैम, डिक ने उनको दोबारा गिना. जस्ट टू मेक श्योर, ये यकीन करने के लिए कि वाकई वो एक को खो चुके हैं. बट ही टू ओनली फाउंड फाइव. उसको भी सिर्फ पाँच ही मिले, या उसने भी गिना तो वो पाँच ही थे.
एंड एड एंड फ्रेड weren't any luckier either. और एड और जो फ्रेड थे वो भी कोई इतने खुशकिस्मत नहीं रहे थे कि वो काउंट करते और वो 6 होते. When they checked, जब उन्होंने भी चेक किया, दोबारा गिनती की. So they all left the spots from where they had been fishing and ran up and down the river bank trying to find the body of their unfortunate drowned brother. चुनाचे उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन सब ने वो तमाम जगह छोड़ दी जहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ रहे थे और दरिया के किनारे एंड रिवर बैंक ट्राइंग टू फाइंड द बॉडी ऑफ देयर अनफॉर्चुनेट ड्राउन्ड ब्रदर. और दरिया के किनारे इधर उधर दौड़ने लगे. किस लिए? अपने बदकिस्मत डूबे हुए भाई के जिस्म को तलाश करने के लिए. और ढूंढते रहे, अपनी जगहों को छोड़ा और दरिया के किनारे इधर उधर दौड़ते रहे और अपने बदकिस्मत डूबे हुए भाई के जिस्म की तलाश करते रहे. ठीक. नाउ just then a boy came strolling along the bank with his fishing line and an empty basket. इसी वक्त एक लड़का अपनी मछलियाँ पकड़ने वाली बंसी, ये जिसको बोलते हैं फिशिंग लाइन, मछलियाँ पकड़ने वाली जो छड़ी थी या बंसी उसको कहते हैं, उसके साथ एंड विद द एम्प्टी बास्केट, एक खाली टोकरी के साथ टहलता हुआ वहाँ आया. He too had been fishing but had not caught a single thing. वो भी मछलियाँ पकड़ रहा था लेकिन एक मछली भी नहीं पकड़ सका था. He too, वो भी मछलियाँ पकड़ता रहा था but had not caught a single thing, और उसे कोई भी मछली ना मिली या एक भी मछली ना पकड़ सका. Why do you all look so worried? क्यों तुम सब इतने परेशान क्यों लग रहे हो? He asked the brothers, उसने भाइयों से पूछा. You all seem to have had a very good morning's fishing. इसने भाई से पूछा, मालूम होता है कि सुबह तुमने बहुत सारी मछलियाँ भी पकड़ी थी, तो फिर भी उसके बावजूद तुम सब क्यों परेशान हो? Because one of our brothers has been drowned. क्योंकि हम भाइयों में से एक भाई जो है वो डूब गया है. They explained in great distress. उन्होंने परेशानी के आलम में एक्सप्लेन किया, वजाहत की. There were 6 of us. हम 6 लोग थे या हम 6 थे when we started out, जब हम घर से निकले. And now there are only 5. लेकिन अब हम सिर्फ 5 हैं. The boy made a quick count and saw there were 6 brothers. लड़के ने जल्दी से एक गिनती की और उसने देखा कि वो तो 6 भाई थे. Look, देखो, he said. उसने कहा, I can help you find your lost brother. उसने कहा कि मैं तुम्हारा खोया हुआ भाई ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. When I tickle each of you on the neck, tickle mean to touch someone to make them laugh. Tickle mean गुदगुदी करना जिसको बोलते हैं. When I tickle each of you on the neck, जब मैं आप में से जिसकी भी गर्दन को गुदगुदी करूँ, I want you to count, और मैं चाहता हूँ कि आप उस वक्त गिनती करें. He went up to elf, वो elf की तरफ गया and tickled him, और उसको गुदगुदी की. 1, एक हो गया. cried elf चिल्लाया, laughing, हंसते हुए. then he went up to Bill, फिर वो बिल की तरफ गया and tickled his neck, और उसकी गर्दन पर गुदगुदी की. 2, cried Bill, बिल चिल्लाया, 2 हो गए. and 3, shouted Clam, and 4, और 4, laughed Dick हंसा. and 5, chuckled Ed, खामोशी से मुस्कुराना या कहका लगाना या हंसना. जी, खिलखिला के हंसा. एड जो है ना खिलखिला के हंसा कहते हैं. 5. and 6, shrieked Fred, तेज आवाज में चिल्लाना. जो फ्रेड है वो चिल्लाया 6. and 6, all the brothers roared in unison. all the brothers roared in a unison. तमाम भाई, सब भाई एक साथ चिल्लाए. realizing, ये महसूस करते हुए, they were all safe and sound, के वो सब के सब हिफाजत से हैं, सब महफूज व मामून हैं. they all embraced one another, उन सब ने एक दूसरे को गले लगाया. and shouted for joy, और खुशी से चिल्लाने लगे. and
इन ग्रेटिट्यूड, इन इजहार तशक्कुर में या इनाम के तौर पर, टू द बॉय दे गेव हिम ऑल द फिश दे हैड कॉट, और इस इजहार तशक्कुर में या इनाम के तौर पर उन्होंने उस लड़के को वो तमाम मछलियाँ दे दी जो उन्होंने पकड़ी थी. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी. In chunks you can find words meaning along with the answers of these questions. You have to memorize these question answers and note on your note copies, neat copies, right? You have to copy these notes on your notebooks and then memorize it. Okay, take care. Allah Hafiz.